This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is All India Radio. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. ये आकाशवाणी है. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी. Question number 121 by Shri Y.S. Avinash Reddy. Will the Minister of Coal be pleased to state A. Whether the government has launched Shakti, scheme for harnessing and allocating koila transparently in India, policy for better allocation of coal to present and future power plants in the country. B. The main features of Shakti policy and the current status of its implementation in the country. C. The list of states currently eligible under Shakti policy. D. Whether Shakti policy has been transparent and has helped to address the coal linkage problems of all the stressed power plants. E. If so, the details thereof, along with the reaction of the government thereto. And F. The details of the sanctioned ongoing projects under the said scheme in Andhra Pradesh. Shri Prahlad Joshi, Minister of Coal. The policy, how we are allocating the coal to the power purchase holders and such things, it is not directly related. However, I would like to clarify that since commercial mining is already in place and it is successfully going well, and I am confident that even this second tranche which commercial mining is on, that will be also successful. So now, as of now, government allocation route, through allocation route, coal mining हम किसी राज्य को आज के दिन में नहीं दे रहा है. Next question. Question number 122, Dr. Sanjay Jaiswal. Question number 122 by Dr. Sanjay Jaiswal. Will the Minister of Law and Justice be pleased to state A. Whether the government has proposed to set up more Lok Adalats in the country to clear pending cases in high courts and lower courts. B. If so, the details thereof, along with the number of Lok Adalats presently functioning in various states. C. The number of cases cleared by the Lok Adalats during the last 3 years state-wise. And D. The extent to which it has reduced the number of pending cases in high courts and lower courts. Shri Kiran Rijiju, Minister of Law and Justice. माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय मंत्री जी ने लोक अदालतों के बारे में विस्तृत से वर्णन किया है, पर मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जिस तरह से लोक अदालतें सिविल डिस्प्यूट्स में अगर दोनों पक्ष तैयार है तो बहुत अच्छे से निपटाने का काम करती हैं, पर आज के समय में बहुत सारे कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे चेक बाउंस कर जाना और ये छोटे डिस्प्यूट्स हैं. उसी तरह से कभी कभी दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो जाता है और एक दो थप्पड़ चल जाता है और उसके कारण दोनों पड़ोसियों के घर बिकने के नौबत पे आ जाते हैं. तो क्या माननीय मंत्री जी यह सोच रहे हैं कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स के छोटे मामले हैं या जो क्रिमिनल केसेस के अंदर आते हैं और वो लोक अदालत में नहीं आते हैं, पर जिनकी सजा 1 वर्ष से कम है, और इस तरह के जो प्रोसीडिंग्स, जो कानून का जो केसेस होते हैं, उनको समाप्त करने में लोक अदालतों की भी भूमिका होनी चाहिए. इससे न केवल कोर्ट पर मुकदमों का लोड कम होगा, बल्कि इस तरह के डिस्प्यूट्स आपसी सामंजस्य अगर दोनों पार्टी मिल करके सॉल्व करने को तैयार है तो उनको एक उचित फोरम मिलेगा जहां से वह अपने दिक्कतों को सॉल्व कर सके. मेरा मंत्री महोदय से यही प्रश्न होगा. हमारे मित्र डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बहुत अच्छी सवाल पूछा है और हम जस्टिस को लोगों के द्वार तक ले जाना चाहते हैं. यानी कि आम आदमी को इस देश में न्याय चाहिए तो उसका व्यवस्था ऐसा होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द न्याय उसको मिले. लोक अदालत बहुत अच्छा एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों को न्याय मिले. जो माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने सुझाव दिया है बहुत अच्छी सुझाव है और इसके माध्यम से इस बार भी जो पेंडेमिक चल रहे हैं इस वक्त भी ई अदालत
ई लोक अदालत का जो कार्यक्रम चलते हैं, वर्चुअली हियरिंग करते हैं, डिवोर्स केस को छोड़ के बाकी मोटर एक्सीडेंट क्लेम और बाकी फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारा लेबर एम्प्लॉयमेंट केसेस है, कई सारे सिविल केसेस है जिसको लोक अदालत में ई लोक अदालत के माध्यम से हियरिंग हुआ है। तो पेंडेमिक के दौरान भी सर न्याय का प्रक्रिया जारी रहा और हम चाहते हैं, मैं सर नए कानून मंत्री बने हैं तो हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को और तेजी से हम आगे बढ़ाएं और सर ये हमारे सिविल जो जितने केसेस हैं इसमें हमारे यहाँ पे अभी जो नंबर्स हमारे पास आए हैं बहुत ही पॉजिटिव नंबर आए हैं सर, और हियरिंग को और तेजी करने का मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम इसको पूरा हमारे मंत्रालय की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। माननीय सदस्य, बहुत धन्यवाद मंत्री जी। लोक अदालत के बारे में आप संतुष्ट हूँ। एक मेरा और प्रश्न होगा कि हम सभी को न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं, पर जैसे हाईकोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस को जो हाईकोर्ट में जाने का कोटा है, इस तरह के चीजों में भी जजेस को न्याय नहीं मिल पाता है। कॉलेजियम सिस्टम इतना प्रभावी हो जाता है कि जो नीचे के अदालतों से जिनको हाईकोर्ट में जजेस बनने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से होगा कि जब कोर्ट हर कार्य में पारदर्शिता की बात करता है तो कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति होती है उसमें इस तरह का व्यवहार होता है कि मुंसिफ का कोई व्यक्ति नहीं बन पाए, जानबूझ के कॉलेजियम में को किया जाता है। तो जैसे लोक अदालत ट्रांसपेरेंट है उस तरह से कॉलेजियम सिस्टम में क्या हो रहा है, इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या मंत्री जी आगे को सोचेंगे? सर ये एक सवाल जो बहुत गंभीर भी है, बहुत संवेदनशील भी है, और आप सब को मालूम है सर इस सदन के मेंबर्स को कि जुडिशियल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होने के नाते उनका एक सिस्टम है। लेकिन जब लोक अदालत की हम बात करते हैं तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से इसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर इसका तय किया गया है, जिसको डिटेल से मैं अभी यहाँ ब्यौरा देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत समय लगेगा। लेकिन व्यवस्था बनाया हुआ है, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो, चाहे वो वहाँ से रिकमेंडेशन करने का सिस्टम है, जो भी है एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के माध्यम से कंपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। पाल जी देखिए, आप बोलो। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम अपने देश में न्याय दिलाने के लिए सस्ता और त्वरित न्याय के लिए लोक अदालतें कदम उठा रही हैं और काफी न्यायिक प्रक्रिया में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोक अदालत के बारे में उनकी एक सकारात्मक पहल है और काफी विस्तार से उत्तर दिया है, तो इसी तरह से जो पेंडेंसी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उस पेंडेंसी को देखते हुए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की और स्थापना जिले स्तर पे करेंगे और हाई कोर्ट पे, जिससे जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो जब जस्टिस डिले हो जाता है तो एक तरह से डिनाइल हो जाता है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और अधिक से करेंगे। अगर करने का विचार है तो कितना कोर्ट उत्तर प्रदेश में करेंगे? धन्यवाद। सर, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस इस देश में है, लगभग 4 करोड़ से ऊपर टोटल केसेस पेंडिंग है और ज्यादातर केसेस जो पेंडिंग है वो लोअर कोर्ट में है। तो लोअर कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है वो बहुत बेसिक है। मैं अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक समारोह हुआ जिसमें मुझे सम्मानित किया गया, तो वहाँ पर मैंने जो बात कही है वो मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम ये मानते हैं कि लोअर कोर्ट में जो गरीब है, आम जनता है, अगर उसको 10-10 साल न्याय नहीं मिलेंगे तो फिर ये हमको सोचना होगा, चिंता की बात है। अगर लोअर कोर्ट में 3 साल से ज्यादा कोई भी पेंडिंग हो जाता है तो मैं मानता हूं कि इसमें बहुत चिंता करना चाहिए सबको। और जुडिशरी का एक प्रक्रिया है, मैं जुडिशरी का काम के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन
जुडिशरी को सपोर्ट देने के लिए सरकार तैयार है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से कई स्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए लोअर जुडिशरी के लिए सैंक्शन किए हैं, कोर्ट हॉल के लिए, लॉयर्स हॉल के लिए, टॉयलेट के लिए, और काफी संख्या में जो कमियां थी इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और राज्य सरकारों से मैं अपील करना चाहता हूं इस हाउस में सर आपके माध्यम से कि वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में साथ दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जजेस का अपॉइंट हो सके, और जजेस के ज्यादा संख्या होने से पेंडेंसी ऑफ द केसेस में कमी आएगी। ये एक रेशियो आपस में मिला हुआ है। तो मैं मानता हूं कि हमारे प्राथमिकता रहेगा कि जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस स्पेशली लोअर कोर्ट में है, इसको जितना भी हो सके हम पेंडेंसी की संख्या को कम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 123 श्री शंकर लालवानी। Question number 123 by Shri Shankar Lalwani. Will the Minister of Coal be pleased to state A. Whether the government has formulated schemes for making several important reforms in the coal sector, keeping in view the Atmanirbhar Bharat campaign, and if so, the details thereof. B. Whether the government has formulated schemes to grant approval to commercial mining in coal sector and to provide financial assistance for producing gas from coal, and if so, the details thereof. And C. Whether the government has formulated any concrete scheme to reduce the import of coal and to increase its domestic production capacity, and if so, the details thereof. Shri Prahlad Joshi, Minister of Coal and Mines. धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ प्रश्न का उत्तर दिया, उसके लिए उनको धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2020 में खनिज कानून संशोधन बिल पास किया गया। इसमें बहुत सारे पुराने अनावश्यक प्रावधानों को हटाया गया है। खनन की एक खुली नीति बनाई गई है। सिंगल विंडो के माध्यम से क्लियरेंस पॉलिसी का सरलीकरण और पारदर्शी और हेल्दी कंपटीशन के लिए ये नीति बनाई गई है, जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोयला आयात कम करने के लिए और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाई है क्या? अगर बनाई है तो बताएं, और इससे कितनी विदेश मुद्रा की बचत होगी ये मैं जानना चाहता हूं। सर, जैसे माननीय शंकर लालवानी जी हमारे सदस्य ने कहा, तो कोयला क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव हमने लाया है। जो लोग अभी चिल्ला रहे हैं वही लोग 2014 से पहले ये लोग डिस्क्रिशन, सब डिस्क्रिशन इनके पास ही थे। जहां से पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से चिट्ठी आता था, वो चिट्ठी के आधार पर अलॉटमेंट होता था। वो लोग अभी आके जो सदस्यों का प्रश्न का उत्तर सुनना चाहिए, प्रश्नोत्तर सदस्यों का अधिकार है। 350 लोगों से ज्यादा सदस्य प्रश्नोत्तर चाहता है, फिर भी ये बाधा हर रोज 6 दिन से 7 दिन से डाल रहे हैं। मैं ये खंडन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट में 2 तरह का इंपोर्ट का है। एक तो पहला तो कोकिंग कोल का इंपोर्ट होता है। कोकिंग कोल पर्याप्त मात्रा में हमारा पास नहीं है, वो कोल हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें भी जो हमारे पास अवेलेबल कोकिंग कोल है, जिसमें ऐश कंटेंट ज्यादा है, वो ऐश कंटेंट कम करने के लिए वॉशिंग का व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। जहां तक थर्मल कोल का व्यवस्था है, थर्मल कोल का कोल इंडिया को हमने निर्देशन दे चुका है कि कोल इंडिया जहां जहां अभी कोल मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने, कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने शुरू किया है। जहां जहां इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट मॉनिटर करके मैंने कोल इंडिया का चेयरमैन और कोल इंडिया का डायरेक्टर को निर्देश दिया हूं कि सभी जो इंपोर्ट कर रहे उनके पास जाके हमारा कोयला ऑफर करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए। जहां तक सवाल है, यूपीए कालखंड में इंपोर्ट रेट 22.86% था, एनडीए काल में वो 1.14 to 18, 15 to 18, 19
ये तो 1.96 हो गया था और एनडीए 2 में ये माइनस भी हो रहा है। आज के दिन में हमारे पास ऑलमोस्ट लगभग 79 मिलियन टन ऑफ कोल हमारे पास अवेलेबल है। जिस कोयला हमारे पास इतने बड़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है, वी आर द 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर इंपोर्टिंग। कारण यह था इन लोगों का, यूपीए का, कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों के कारण हम इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन आज के दिन में कोकिंग कोल के अलावा बहुत कम मात्रा में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आगे भी हमारा प्रयास है, हम पूरा कोशिश में लगे हुए कि इंपोर्ट कम हो जाए। उसके लिए कमर्शियल माइनिंग भी हमने शुरू कर दिया है और कमर्शियल माइनिंग के साथ ही साथ कोल इंडिया का भी सक्षमता बढ़ाने के लिए हम बहुत उपक्रम हमने ले चुके हैं। कोल इंडिया के भी कोविड के समय पे भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे कोल इंडिया के एम्प्लॉय, हमारा कोल इंडिया के ऑफिसर, ये कोविड के समय में भी रिकॉर्ड उत्पादन करते हुए कोयला का जो इंपोर्ट होता था वो कम करने में बहुत प्रयास किया है। इसके अलावा हमने कमर्शियल कोल माइनिंग में जो कुछ भी किया है ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये कभी भी इन लोगों ने कर नहीं पाया। मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। 20 हमने ऑलरेडी ऑक्शन कर चुका है। रोलिंग ऑक्शन अभी भी चल रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। 3-4 वर्ष में जब इसका प्रोडक्शन शुरू होगा, धीरे धीरे पूरा हमारा कोयला इंपोर्ट, जो सब्स्टिट्यूटेबल इंपोर्ट जो उसको कहते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। ये मैं आप सदस्य को कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, उनको मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ उत्तर दिया। मैं चूंकि मध्य प्रदेश से आता हूं, माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो खनन की कंपनियां काम कर रही है, उसका जो CSR का फंड है वो क्या मध्य प्रदेश के विकास के लिए उपयोग करेगी? अगर करती है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही है तो यहाँ से निर्देश दिए जाएंगे क्या? CSR फंड भी हमारी सरकार सभी कंपनियों को ऑलमोस्ट मैंडेटरी किया है। उधर का जो कंपनी है वो कंपनी के लिए जो मध्य प्रदेश में हो और कई कंपनियां जो मध्य प्रदेश में है वो कोल का हो और किसी का भी हो, अगर प्रपोजल देते हैं तो जरूर कंपनी कंसिडर करेंगे, क्योंकि उनका वो आंतरिक उनका कंपनी का दिस इज द अफेयर ऑफ द कंपनी, दिस इज नॉट दी, हम डायरेक्शन नहीं दे सकते। फिर भी वो लेट हिम गिव द प्रपोजल टू द कंपनी एंड कंपनी विल डेफिनेटली एग्जामिन इट। कान दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा मिशन आत्मनिर्भर भारत की तरफ कोल इंडिया ने उठाया है। मेरे छोटे सवाल हैं, जिस राज्य से मैं आता हूं अध्यक्ष महोदय, वहां कोयला तो है लेकिन जमीन की अनुपलब्धता के कारण वो कोयला निकल नहीं पाता है। जैसे मेरे गोड्डा जिला में, मेरे दुमका जिला में इस देश का सबसे बड़ा रिजर्व है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, गैस हमारे पास नहीं है, पेट्रोल हमारे पास नहीं है। कोल की 2 टेक्नोलॉजी है सर, कि कोल टू लिक्विड, जिसमें कि पेट्रोल के प्राइस काफी कम हो जाएंगे, और दूसरा कोल बेड मीथेन जो कोल से निकलेगा और इसमें जमीन भी कम निकलता है और उस कोयले का हम उपयोग कर पाएंगे। तो क्या मंत्री महोदय उस तरह के जगहों पर जहां की हम कोयला निकाल नहीं पा रहे हैं, एक लोकल एजुकेशन के कारण कोल टू लिक्विड और कोल बेड मीथेन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या इस सरकार की क्या पॉलिसी है, इसके बारे में यदि बताएंगे तो अच्छा होगा सर। माननीय निष्कांत दुबे जी जो बहुत अनुभवी और लर्नेड मेंबर है, उन्हें बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। सारे देश को एज ए कंट्री वी शुड अंडरस्टैंड दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ कोल, हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी ने, जब मैं कोल मंत्री बना, उन्होंने मुझे कोल मंत्री करके अपॉइंट किया, तब एक बात उन्होंने कहा था, मैं समझ सकता हूं अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो मैं समझ सकता हूं, अगर हम कोयला का इंपोर्ट करते हैं तो ये पाप है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था।
वो बात मद्देनजर रखते हुए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में बहुत कोशिश किया है। ये जो लैंड का मामला है, ये लैंड का भूमि का मामला है, जहां एक्विजिशन वगैरह का प्रॉब्लम होता है, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हमको कोऑपरेट करना है। और अगर उधर कोयला का उत्पादन होता है और अदर मिनरल का उत्पादन होता है, जो कुछ भी उत्पादन उधर होता है, पूरे से पूरा रेवेन्यू स्टेट को मिलता है। उधर का हमारे नौजवान बच्चे को नौकरी मिलते हैं, फिर भी कई स्टेट गवर्नमेंट हमको इस बारे में कोऑपरेशन कितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं मिल रहा है। इसलिए उसके साथ जिन्होंने पूछा है, या हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं गैसिफिकेशन के लिए और लिक्विफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं। हमने गैसिफिकेशन के लिए ऑलरेडी 10% अगर वो उनको जो कमर्शियल कोल माइनिंग कमर्शियल कोल ब्लॉक मिला है, उसमें अगर वो 10% भी उपयोग करते हैं तो इफ यू यूज इट जस्ट 10% टू गैसिफिकेशन, उसमें उनको रिबेट मिलता है प्रीमियम में, और रेवेन्यू शेयर में जो है वो उनको रिबेट मिलता है। आगे भी कोल गैसिफिकेशन के लिए हम ज्यादा कंसेशन देने का सोच मंत्रालय में चल रहा है, क्योंकि गैसिफिकेशन के कारण हमको बहुत ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, थोड़ी हद तक टू एन एक्सटेंट इट कैन सब्स्टिट्यूट, इसके लिए बहुत कंसेशन हमने ऑलरेडी दिया है। और अभी पहले जो रुपये पर टन था जो कमर्शियल माइनिंग में, हम रेवेन्यू शेयर पर कर रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ा एंड यूज हमने पूरा खत्म कर दिया है और गैसिफिकेशन के बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। ये सब जो रिजल्ट आते थे थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लैंड भी हमको मिलना चाहिए। मैं सदस्य से आग्रह करता हूं, हम भी इधर से कोशिश कर रहे हैं, आप भी कृपया इंप्रेस करें अपने राज्य सरकार से। अगर भूमि अधिग्रहण वो जल्दी करके देते हैं तो हम जल्द से जल्द ये जो कमर्शियल कोल माइनिंग के थ्रू गैसिफिकेशन भी शुरू होगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। श्री अर्जुन सिंह। धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं एक पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं जिस राज्य से आता हूं वहां भी बहुत सारे कोल माइंस हैं और हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोयला के उत्पादन में बढ़ोतरी की है, उसी तरह से हमारे बंगाल में कोयला चोरी का प्रावधान बहुत है और सरकारी संरक्षण में चोरी होती है। तो ये चोरी का जो कानून है, चोरी के ऊपर जो कानून है, उससे इन चोरों को रोका नहीं जा रहा है। इसके लिए कोई हमारे मंत्रालय जो है कोयला चोरों के लिए कोई कड़ा से कड़ा कदम, कोई कड़ा से कड़ा कानून क्यों नहीं बनाती है, और सरकार के पास इसका कोई कानून बनाने का प्रावधान है कि नहीं है? क्योंकि जिस तरह से सरकारी संपत्ति लूट ली जा रही है और उससे वहां जिस तरह से चोरी का एक माहौल बना हुआ है, सारा उत्पादन का बहुत सारा भाग चोरी किया जा रहा है। तो हमारे कोल मंत्रालय और से मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दे, ताकि बंगाल से जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू सरकार यहाँ बंगाल के जनता के लिए खर्चा करे, देश की जनता के लिए खर्चा करे। इसके ऊपर कोई कानून बनाएंगे, कड़ा कानून करेंगे कि नहीं, इसके लिए मैं आपसे अपना प्रश्न रखना चाहूंगा। ये जो सदस्य ने जो कंसर्न उठाया है, the concern expressed by honorable minister is a very serious thing. लेकिन ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये स्टेट का इश्यू है। जब भी हमारे ध्यान में आता है हम तुरंत उधर पुलिस कंप्लेंट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्रवाई ठीक तरह से नहीं होता है। बहुत बड़ा दौर्भाग्य की बात है। हम स्टेट गवर्नमेंट से इंप्रेस करना चाहते हैं और करने का कोशिश भी करेंगे कि जहां भी कोयला का चोरी हो रहा है वो बंगाल में से ज्यादा चोरी हो रहा है बड़ा, कृपया उसको रोकने के लिए पर्याप्त कोशिश होना चाहिए।
एंड रिसेंटली ECL में जो कुछ भी हुआ था ईस्टर्न कोलफील्ड में, उसमें CBI का भी उसमें एक्शन लिया था, बहुत अच्छा एक्शन लिया था। फिर भी मैं आग्रह करता हूं, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, जिन्होंने कंसर्न व्यक्त किया है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के संज्ञान में हम जरूर लाएंगे। नंबर 124, श्रीमती चिंता अनुराधा। Question number 124 by Srimati Chinta Anuradha, Sri Adala Prabhakara Reddy. Will the Prime Minister be pleased to state A. Whether the government has launched the COVID Beep, which was developed by the Department of Atomic Energy DAE in collaboration with the IIT Hyderabad and the ESIC Medical College Hyderabad. B. If so, the details thereof. C. Whether this is India's first indigenous and cost-effective monitoring system for COVID-19 patients, and if so, the details thereof. D. Whether the government has taken any steps to undertake the production of COVID Beep on a large scale, and E. If so, the details thereof. Dr. Jitendra Singh, Minister of State, Prime Minister's Office. माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। Sir, can I know whether it is the fact that COVID Beep launch has been effective in dealing with the pandemic, whether the people at large are aware of this app? If so, the details thereof, and if not, the reasons thereof. Speaker sir, I appreciate the question put by the honorable members. It has a huge relevance with the contemporary crisis and the catastrophe of COVID that we are facing. And I like to use this opportunity to share with the Honorable House and the August House that under Prime Minister Shri Narendra Modi, while India has been universally acknowledged as having launched one of the largest and the fastest vaccination drives in the world, at the same time, there are number of initiatives taken which are purely indigenous, first of their kind, and very much in keeping with Prime Minister's mission of Atmanirbhar Bharat. And what the honorable member has referred today is also a device called COVID Beep. COVID stands for Continuous Oxygen Vital Information Device, also synonymous with the name COVID, and it is a purely indigenous device. I compliment the scientists in the Department of Atomic Energy for having come out with this, and it has been developed by the Electronic Corporation of India Limited and with the collaboration of ESI Hospital Hyderabad. Now coming precisely to what the honorable member said, yes, this device is being largely publicized for a wider use. If you want precise details, I'll let you know. We have already supplied more than 500 to the Red Cross Society in Kerala. We have more than 100 being used in the ESIC hospital. Rishikesh AIMS has already procured, and there is a potential order of more than 10,000 from the Ministry of Labour and Employment. We are also engaging with the Ministry of Health and Family Welfare. The presentations are going on. I think this is a unique device in the sense that it is very handy, and it is not only usable for individuals like you have oximeter, it can be used also in the hospital setting. So it is not only home setting, it is a hospital setting as well, and it has simultaneously the provision of measuring not only the oxygen levels, which are known to be vital by all of us in the COVID, during the COVID management, but it also simultaneously records body temperature, heart rate, blood pressure, ECG and respiratory rate. In other words, this is a kind of a unique invention which even after we have overcome the COVID crisis will come handy later also. In the hospitals, it is also geotagged. It has a Bhuvan connection through ISRO, and therefore it has not only a mobile app but also GSM SIM which operates through Bhuvan, as a result of which we are trying to convince the hospitals that it could be used for monitoring patients in the wards while our nursing workers are sitting at the nursing stations
or consultants are sitting in the rooms. So without going close to the patient, which is also a kind of an SOP to be followed in COVID times, this could help in also managing and at the same time also ensuring that the quarantine and other appropriate behavior is being followed, because any movement of the patient or the individual will also get recorded. माननीय Sir, सदस्य, sir, whether it is a fact that it has been seen that by and large alarms of the app were not actionable, meaning as and when alarms were genuinely needed to save patients, it proved like a needle in haystack. What steps are taken in this regard? Thank you. No, Honorable Speaker sir, while I appreciate the concerns raised by the Honorable Member, which only reflects her deep concern for ideal management of COVID and the potential COVID patient, I would like to convey to her that adequate trials have been done on this device, not once, more than once, demonstrations given to different hospitals, to different organizations, and therefore that is how it has gained acceptability as an easy-to-use device with a huge degree of specificity, huge degree of sensitivity. It is also relatively cost-effective, and as I said, it is meant for multiple use, not only as far as the multiple parameters recording is concerned, but also as far as the multiple utility locations are concerned, which in other words means that not only an individual can use it, but also hospitals can use it. It is an easy-to-wear device which is tied around the wrist, and then the rest of it follows. श्री अजला प्रभाकर रेड्डी. Honorable Speaker, sir, my supplementary is COVID BP is a perfect example of how synergy amongst the reputed institutions of India can offer solutions to most of the challenges faced by the country with a minimum cost, and thereby make the country Atmanirbhar. In the true sense, in this regard is the government undertaking steps to promote indigenous development of more such solutions to health-related issues, especially in the present context of COVID-19 pandemic. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, the Honorable Member has put a very pertinent question, and I would say that the credit goes to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for having converted this adversity of COVID into a virtue and proved to the world that in this crisis times we can come after one after the other several indigenous solutions, indigenous devices and indigenous formulations. If you permit me, besides COVID, I would like to share with this august House, which could not be shared in the earlier days because of the din prevailing here, although the Honorable Speaker had been requested, that in this very House chamber, we have through the Ministry of Science and Technology and the Biotechnology an instrument called ultraviolet sanitation, and all the air-conditioned air that is arriving at our benches and our desks is coming through that ultraviolet sanitation. So we have already installed that in Lok Sabha chamber and in the Central Hall to begin with. Similarly, if you take precisely the department which is currently related to this question, we have come out with Neel Bhashmi, we have come out with remote health monitoring system, radiation sterilizations. It is the Department of Atomic Energy again which came out with reusable PPE kits. So we can imagine when the COVID crisis struck us early last year, the country was facing shortage of PPE kits. Today, not only we have abundant number of them, we also have the techniques to sterilize them and reuse them. Similarly, we have also come out with ventilators, and these are the techniques which are being also emulated by the rest of the world. I appreciate Honorable Member for having taken this view and appreciated the several new initiatives and breakthroughs undertaken during the COVID times under the guidance and leadership of Honorable Prime Minister. Question number 1253, Poonam Madam. Question number 125 by Srimati Poonam Madam. Will the Minister of Railways be pleased to state A. Whether several areas in Gujarat are still not connected by railway network, due to which people in the said areas are deprived of railway facility and development in these areas is stalled.
B. If so, the details thereof. And C. The time by which the government proposes to start projects to connect these areas of Gujarat by railway network to ensure railway facility for people living in the said areas and also development of these areas. Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways. माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में रेल कनेक्टिविटी सुधार हेतु रेल मंत्रालय द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी विस्तृत जानकारी अपने उत्तर में दी है। हम सभी इस बात से विदित भी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार रेल का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। रेल सुविधा बढ़ाने हेतु जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं हैं उसको भी अपग्रेड की जा रही है, नई ट्रेनें भी चलाई जा रही है। सर, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र जो जामनगर और द्वारका लोकसभा क्षेत्र है वो देश के पश्चिमी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में स्थित है। तो इस समग्र क्षेत्र को और रेल सुविधा से जोड़ना अति आवश्यक है। ये जो नई रेल पटरी, रेल सुविधा बढ़ाने जाने की डिटेल्स माननीय मंत्री श्री ने यहाँ दी है, उसमें पोरबंदर तक का उल्लेख है। मैं माननीय मंत्री श्री से जानना चाहूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कालावर तहसील, जोड़िया तहसील और द्रोल के भी काफी ऐसे इलाके हैं द्रोल तहसील के जो आज भी रेल सुविधा से जुड़े नहीं हैं। क्या आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों को रेल से जोड़ने का कोई प्रावधान होने वाला है? उस दिशा में कोई सर्वे किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लिए गए हैं और रेलवे का किस तरह से एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसा हम सब जानते हैं रेलवे भारत की लाइफलाइन है। तो गुजरात के जामनगर क्षेत्र की माननीय सांसद महोदया ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं और इनके प्रश्न का जिस तरह के अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनके क्षेत्र में, राजकोट कन्नौज डबलिंग का पूरा सर्वे कंप्लीट हो चुका है, उसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है, तो उस पर भी आगे काम चल रहा है। और आदिवासी क्षेत्र जो विशेषकर अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की ये सरकार गरीब, वंचित, शोषित लोगों की सरकार है। तो जो विशेषकर ट्राइबल एरिया है और अपने कल्चरल हेरिटेज के एरिया है, सोमनाथ, कोडिनार लाइन हो गई, गिर का एरिया हो गया जो कि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब में कई सारे प्रोजेक्ट्स की डीपीआर चल रही है, सर्वे चल रही है। मान्यवर सदस्य के साथ मैं जब भी कार्यालय में बैठूंगा उनको डिटेल विवरण उनके क्षेत्र का दे दूंगा। सर, मेरे संसदीय क्षेत्र में जो भावनगर डिवीजन है, तो भावनगर डिवीजन में भी सुविधाएं बढ़ाने की अति आवश्यकता है, क्योंकि भावनगर डिवीजन से जो तहसीलें मेरे क्षेत्र में जुड़ी है, जैसे कि जामजोधपुर तहसील, भाणवड़ तहसील, लालपुर तहसील, यहाँ पे जो नागरिक है उनकी बहुत समय से डिमांड है नई ट्रेनें चलाई जाए, पर इन सुविधाओं के अभाव से नई ट्रेनें हम नहीं चला पा रहे हैं। बहुत समय से मेरी मांग है राजकोट पोरबंदर से शुरू होकर सुबह ट्रेन राजकोट जाए वाया जेतलसर और वांसजाड़िया, ये ट्रेन हम शुरू, मात्र ये सुविधा उपलब्ध न होने के वजह से नहीं कर सके। मैं माननीय मंत्री श्री से जानना चाहूंगी कि क्या भावनगर डिवीजन, जहां बहुत उसे मुख्य क्षेत्र से जोड़ने की अति आवश्यकता है, क्या इस डिवीजन में आने वाले दिनों में मेरे क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी और रेलवे की जो दोहरीकरण, रेल पटरी की जो दोहरीकरण का कार्य है वो मेरे क्षेत्र में कब तक पहुंचेगा और ओखा तक ये सुविधा कब उपलब्ध होगी? अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जो प्रश्न किया है, इनके क्षेत्र में डबलिंग का कार्य राजकोट कन्नौज डबलिंग का ऑलरेडी चल रहा है, इसका डीपीआर बन गई जैसा मैंने पहले निवेदन किया। इसके अलावा माननीय सांसद के क्षेत्र में स्टेशन के जितना स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम है देश भर में चल रहा है, न केवल माननीय सांसद के क्षेत्र में बल्कि देश भर में स्टेशन का इम्प्रूवमेंट कैसे हो,
उसका रीडेवलपमेंट कैसे हो, और विशेषकर जो नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रख के हैंडीकैप अपने जिस तरह से फिजिकली हैंडीकैप लोगों का जिस तरह से गरीबों के लिए ध्यान देना हो, उसी तरह से स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। एक विस्तृत जानकारी मैं माननीय सांसद सदस्य के साथ बैठ के इनके क्षेत्र के दूसरे पॉइंट्स को भी मैं सुन के नोट करके उस पर संज्ञान ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 12CC M.K. Raghavan. Question number 126 by Shri M.K. Raghavan. Will the Minister of Railways be pleased to state A. Whether the government plans to upgrade Calicut Railway Station with the help of Indian Railway Stations Development Corporation IRSDC. B. If so, the details regarding the plans proposed in this regard. C. Whether any progress has been made by IRSDC in the development of Calicut Railway Station to international standards. And D. If so, the details regarding the works undertaken in this regard. Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways. माननीय रेल मंत्री जी, आंसर सदन के पटल पर रखा गया है अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य 127 श्री संजय सेठ। Question number 127 by Shri Sanjay Seth. Will the Minister of Coal be pleased to state A. Whether the government has formulated any scheme to utilize Corporate Social Responsibility (CSR) fund of coal companies for the development of coal fields, especially in Jharkhand. B. If so, the details thereof along with the details of such development works being carried out. C. The quantum of funds accrued and utilized by coal PSUs for the purpose during the last 3 years and the current year. D. The status of physical progress of such development works activities. E. Whether any of the coal PSUs has defaulted in spending CSR funds, and if so, the details thereof along with the corrective action taken by the government thereon. And F. Whether any relief is being provided to the families of the miners who suffered accidents, and if so, the details thereof. Shri Prahlad Joshi, Minister of Coal. माननीय मंत्री जी, ये MP लैड वाला क्वेश्चन है सर। जवाब 1 to 8 का है, क्वेश्चन 7 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जानकारी दी है। यह पहला अवसर है जब CSR के तहत कोयला जगत में अभूतपूर्व काम हुआ। कोविड काल में झारखंड के अंदर अस्पताल, भोजन, ऑक्सीमीटर, तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की गई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय कोयला मंत्री जी को अभिनंदन करना चाहता हूं कि CSR के तहत कोविड में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम खड़ा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले हमने आदरणीय कोयला मंत्री से आग्रह किया था कि हमारे रांची में खिलाड़ी में एक CSR के तहत केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो, एक बड़ा लाइब्रेरी जो राष्ट्रीय स्तर की एक लाइब्रेरी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रांची में एक बड़ी लाइब्रेरी का काम शुरू होने जा रहा है। मैं कोयला मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। मैंने आग्रह किया था एम्बुलेंस, मोर्चरी और संवहन, ये सब काम बहुत जल्दी पूरे हो रहे हैं, पाइपलाइन में आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, झारखंड के अंदर खिलाड़ियों की बड़ी पौध है, चाहे वो क्रिकेट हो, तीरंदाजी हो, कुश्ती हो, खो-खो हो, कबड्डी हो। हमारे यहाँ झारखंड के अंदर खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि CSR के तहत क्या हमारे खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग की सुविधा होगी? क्या हमारा जो खेल गांव है, जो CCL मेंटेन करता है, उस खेल गांव के अंदर हमारे झारखंड के खिलाड़ियों के विश्व स्तरीय सुविधा मिल सकती है? क्या योजना है? संजय सेठ जी हमारा अच्छे मित्र है। उन्होंने अपने कोयला क्षेत्र से आता है। कोयला क्षेत्र से आने के कारण उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट भी हमारे पास भेजते रहता है, क्योंकि कोयला क्षेत्र से है। उनके क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ भी काम पूछा गया था, वो काम
कोल इंडिया और इसके सब्सिडी जो है वो करवा के दिया है। मैं उनका जो उनके क्षेत्र के प्रति और उनके प्रांत के राज्य के प्रति उनका जो कंसर्न है मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं। बार बार आके हमारे साथ मिलते हैं, ऑफिसर के साथ मिलते हैं, अपना काम करवा के जाते हैं। तो आई लाइक द पीपल हु गेट द वर्क डन, तो इसलिए मैं उनको अभिनंदन करता हूं। और जैसा जहां तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने झारखंड में हो और कई राज्यों में बहुत काम किया है। हमने पूरा उसका दौरा इधर रखा गया है। और उसके साथ ही साथ अगर कुछ कोल इंडिया के CSR के थ्रू और कुछ करना है तो लेट हिम अप्रोच दी लोकल, हमारा जो सब्सिडीज है कोल इंडिया है उसमें अप्रोच करने दो। जरूर वो कंपनी मेरिट के बेसिस पर उसको कंसिडर करेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि कोरोना काल में जिन्होंने अपने अभिभावक खोए, माता पिता खोए, क्या उनके लिए कोई योजना तैयार है? क्या उनके फीस के लिए, उनके निःशुल्क शिक्षा के लिए CSR के तहत, कोल इंडिया CCL के तहत कोई योजना तैयार है क्या भारत सरकार द्वारा? अध्यक्ष जी, शिक्षा क्षेत्र में हो या स्पोर्ट्स क्षेत्र में हो, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं उसके लिए कोल इंडिया, जहां स्पेशली जहां काम कोल इंडिया का काम है, कोल इंडिया सब्सिडीज का काम है, हम बहुत संवेदनशीलता से काम, हमारा कंपनी काम कर रहे हैं। लेकिन ये फीस वगैरह के जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बात नहीं आता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हम जो कुछ भी पॉसिबल है वो करने के लिए ऑलरेडी कहा है। और कोविड कालखंड में वो झारखंड में हो, उनके क्षेत्र में हो, ओडिशा में हो, हमने बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने खड़ा कर दिया है। इसके अलावा कोल इंडिया और हमारे सब्सिडरीज मिलके PM केयर फंड में भी हमने इसके लिए कोविड निर्वहन के लिए कोल इंडिया के CSR के थ्रू उधर भी हमने उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन दिया गया है। उसके साथ जो कुछ भी जहां हमारा कोयला का खनन होता है उधर जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस के थ्रू वो हमारे कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा और कंपनी मेरिट के आधार पर, नियम के आधार पर उसको कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 श्रीमती हरसिमरत कौर। Question number 128 by Srimati Harsimrat Kaur Badal. Will the Minister of Statistics and Program Implementation be pleased to state whether the government has relaxed the condition of MPLAD scheme and if so, the details thereof. B. Whether the government is aware that in this pandemic, when lakhs of people are dying, there is an emergent need to help people and members of parliament are not able to help these people because government has frozen the MPLADS fund for 2 years, that is 2020 and 2021. C. Whether the government, in view of the emergency situation in the country, will restore the frozen funds. And D. Whether the government also plans to increase the MPLADS allocation from ₹5 crore to ₹10 crore. माननीय मंत्री जी, जवाब पटल के ऊपर रख दिया है। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 129 डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। Question number 129 by Dr. Alok Kumar Suman. Will the Minister of Defence be pleased to state A. Whether the Ministry's Army's land monetization policy has not been implemented in the country. B. If so, the details thereof. C. Whether there is any land revenue loss due to non-implementation of the said land monetization policy, and if so, the details thereof. D. Whether the land of Sabaya Air Base in Gopalganj, Bihar, is lying unused for many years, and if so, the reasons for non-utilization of this land. And E.
whether the government is planning to use this land of Sabia Air Base for defense purposes. If so, the details thereof, and if not, the reasons therefor. Shri Ajay Bhatt, Minister of State for Defence. माननीय मंत्री जी, मान्यवर उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, सबिया एयरबेस जो 571 एकड़ में फैला है और हमारे हथुआ अनुमंडल के गोपालगंज वो नॉन ऑपरेशनल है और इंक्रोचमेंट का शिकार हो रहा है। अभी वो तत्काल माननीय सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा उसको उड़ान योजना के तहत शामिल की गई है। इसके लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री और माननीय सिविल एविएशन मंत्री जी को बधाई देता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मेरा क्वेश्चन इसमें है कि क्या माननीय मंत्री महोदय द्वारा रक्षा मंत्रालय से सिविल एविएशन मंत्री को एनओसी दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा ताकि ये काम आगे बढ़ाया जा सके? धन्यवाद। मान्यवर गोपालगंज जिले में सवैया एयरफील्ड को रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड में हथुआ एयरफील्ड के नाम से दर्ज किया गया है। मान्यवर सवैया यानी कि हथुआ रक्षा भूमि को एयरपोर्ट बनाने की कोई मांग या प्रस्ताव आज तक कहीं से भी नहीं आया है, और यदि कहीं से कोई प्रस्ताव आता है, सिविल एविएशन से भी हमने ज्ञात किया था, उन्होंने कई बार इसकी डिमांड्स निकाली, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया है। और जब कभी भी प्रस्ताव आएगी तो उस पर विचार किया जाता है और हम देते ही हैं मान्यवर, हम देते हैं, पॉलिसी में है, जो भी नियम है उसके आधार पर दिया ही जाता है पब्लिक यूटिलिटी के लिए। मंत्री महोदय, उसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के तहत शामिल किया जा चुका है, इसमें मंत्री महोदय क्या कहेंगे? नहीं, सिविल एविएशन के अधिकारी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने कहा हमने डिमांड निकाली है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा है। हम उसकी मरम्मत संबंधी करने और बोली लगाने के लिए कुछ प्रयास किया जा सकता है क्या? मान्यवर, हम तो पब्लिक यूटिलिटी के लिए भूमि हमेशा देते हैं, लेकिन हमारी तरफ से बोली लगाने का कोई प्रोविजन नहीं है। यदि कोई भी प्रोविजन आएगा तो नियमानुसार पब्लिक यूटिलिटी के लिए हम ऐसी भूमि को राज्य सरकारों को, लोकल बॉडीज को अवश्य देते हैं। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 120 श्री बसंत कुमार पांडा। Question number 130 by Shri Basant Kumar Panda. Will the Minister of Railways be pleased to state A. Whether in the Union Budget the government has approved a new railway project, Electric Loco Periodical Overhauling Workshop for Kalahandi district in Odisha. B. If so, the details thereof. C. The time by which the said railway project is likely to be launched. And D. The funds allocated by the government for the said project along with the details thereof. Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways. रेल मंत्री जी, की उत्तर सदन के पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि कालाहांडी जिले के नरला एक पिछड़ा ब्लॉक है, इलेक्ट्रिक लोको पीरियोडिकल ओवरवेलिंग वर्कशॉप मंजूरी किया गया था। राज्य सरकार ने 328 एकड़ में से 141 एकड़ यानी कि 47% जमीन ऑलरेडी दे चुकी है और बाकी जमीन देने वाली है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस परियोजना को तुरंत प्रारंभ किया जाए। और दूसरी बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि 2017-18 में मंजूर किया गया प्रोजेक्ट अभी तक पेंडिंग है। ये निश्चित रूप से उद्वेग और विडंबना का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि 2017-18 में से आज तक 21-22 तक हम पहुंच चुके हैं, 5 साल लंबित हो चुका है। तो इस बीच में कितने बार राज्य सरकार से निरंतर पत्रालाप किया गया है जमीन देने के लिए,
अगर हुआ है तो उसका विवरण दें, और मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को डायरेक्शन दें या निवेदन करें कि जल्दी से जल्दी जमीन मुहैया कराएं और ये पिछड़ा जिला, आकांक्षी जिला में इलेक्ट्रिक लोको पीरियोडिकल ओवरवेलिंग वर्कशॉप निश्चित रूप से बनाया जाए। 47% जमीन अभी तक मिला हुआ है, उसमें भी काम चालू किया जा सकता है। ये निवेदन माननीय मंत्री जी से है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बसंत पंडा जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी थे जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया है। पीरियोडिकल ओवरहॉल शॉप जो बनेगी कालाहांडी के, इस कालाहांडी को हम सब जानते भी हैं, उड़ीसा का एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में पीओएस बनने से माननीय अध्यक्ष जी न केवल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बल्कि बहुत सारा एंसिलरी यूनिट भी वहाँ पे स्थापित होगा। तो इस प्रोजेक्ट को टॉप प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है। ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने जितनी लैंड दी है उस लैंड का डीजीपीएस सर्वे कर दिया गया है। कुछ फॉरेस्ट के इश्यूज हैं, स्टेज 1 क्लियरेंस उसकी होनी है, तो फॉरेस्ट के इश्यूज को मंत्रालय से राज्य सरकार की तरफ परस्यू किया जा रहा है। और माननीय सदस्य जी का वैसे भी राज्य सरकार में बहुत प्रभाव है, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आप अपनी तरफ से जोर लगाएं और किसी भी तरीके से जमीन जल्दी से जल्दी मिल जाए। माननीय सदस्य पांडा जी पूछना चाहते हैं आप? धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 131 श्री पीके नवासकनी जी। Question number 131 by Shri K. Navaskani, Shri Balubhau Suresh Narayan Dhanorkar. Will the Minister of External Affairs be pleased to state A. The details of the allocation of foreign aid received from April 2021 till date, including the dates and destinations of such allocations. B. Whether any foreign aid consignments are pending for allocation, and if so, the details of the same including reasons for delay in allocation. C. The details of every foreign aid consignment received as COVID-19 relief from April 2021 till date, including the date of receipt, the quantum and nature of each consignment, and the respective donor country. And D. The details of the procedure, formula, followed to determine the allocation of these received resources, including the resource type and quantities to be distributed. माननीय मंत्री जी, the table of the House. क्वेश्चन नंबर 132 श्रीमती रीति पाठक। Question number 132 by Srimati Riti Pathak. Will the Minister of Electronics and Information Technology be pleased to state A. Whether the government proposes to develop information technology IT hubs in small cities, and if so, the details thereof. B. The steps taken by the government in this regard. And C. Whether the government proposes to give an impetus to foreign direct investment FDI in this regard, and if so, the details thereof. Sir, answer is laid on the house on the table of the House. क्वेश्चन नंबर 133 श्रीमती जसकौर मीणा। Question number 133 by Srimati Jaskaur Meena. Will the Minister of Railways be pleased to state A. Whether the government is aware that there are 25 villages near Bandikui, including Bhojwada and Deladi villages, where an underpass is needed to be constructed between pillars number 175 to 500 of Bandikui-Baswa railway line, and if so, the details thereof. B. Whether the government is also aware of the need to construct an underpass near Bhojwada village, as 1 lakh people of around 40 villages are affected by the delay in the construction of the said underpass, and people have to go an extra 45 kilometers, and the farmers of the villages are not able to approach their land as the land is on both sides of the road. C. Whether the government is likely to include the construction of the said underpass under the National Rail Plan. And D. If so, the details thereof. Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways. Sir, answer is laid on the table of the House. माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ, दौसा संसदीय क्षेत्र में बसवा बांदीकुई के बीच अंडरपास की बड़ी समस्या रही है और यहाँ से बहुत सारे मजदूर मजदूरी के लिए दिल्ली आते हैं। ऐसी स्थिति में यातायात की सुगमता को देखते हुए मैं
ये मंत्री जी से कहना चाहूंगी और ये उम्मीद भी रखना चाहूंगी कि अंडरपास के लिए तो आपने कंसीडर कर लिया, लेकिन साथ ही बसवा स्टेशन पर पूजा या आश्रम का ठहराव होना अत्यंत आवश्यक है। क्या आपका विचार मेरी इस बात को मानने के लिए है तो आप मुझे आश्वस्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, जिस एरिया से माननीय सांसद महोदय आती हैं, वहाँ पे अति कम क्षेत्र में 2 लेवल क्रॉसिंग्स हैं, एक आरयूबी है और एक आरओबी है। इसके अलावा जो माननीय सांसद महोदया ने डिमांड रखी है 2 ट्रेन के वहाँ पे हॉल्ट देने की। माननीय अध्यक्ष जी, कोविड के समय बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन का यातायात कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए बंद किया हुआ है और धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है, एक पर्टिकुलर सिस्टम से नई ट्रेन चालू की जा रही है। तो जहाँ पर भी हॉल्ट देना है किसी भी जगह पे, उसमें रेलवे का अपना एक प्रावधान है, अपना एक नियम है, उसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी देखी जाती है, पैसेंजर्स का उसमें क्या उपयोग हो सकता है वो सब देखा जाता है। तो माननीय सांसद महोदया ने जो 2 पॉइंट्स रेज किए हैं उनको मैं संज्ञान में लेके उसका प्रॉपर असेसमेंट करवा दूंगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहती हूँ अध्यक्ष जी के माध्यम से कि दौसा संसदीय क्षेत्र ही नहीं, राजस्थान का ये पूर्वी भाग जितना पिछड़ा हुआ है, जल अभाव के कारण खेती भी नहीं, मजदूरी के कारण जिस तरह से आवागमन में दिक्कतें आती हैं, तो संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में जहाँ जहाँ अंडरपास विचाराधीन है और जो मेरी मांग के अनुसार मैंने अंडरपास दिए हैं, इनको शीघ्र यदि आप पूरा कराने की कोशिश करेंगे तो यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जसकौर मीना जी हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सांसद हैं, पूज्य अटल जी के समय से वो मुझे गाइड करती आ रही हैं, तो इनकी क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं मैं इनके साथ अलग से एक बार बैठ के उस पर पूरा विचार करके जो एक्शन लेने ले लूँगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 134 श्री D.K. Suresh. Question number 134 by Shri D.K. Suresh. Will the Minister of Railways be pleased to state A. Whether it is true that the number of persons recruited through the Railway Recruitment Board's RRBs have been declining in the recent years, and if so, the details thereof during the last 3 years. B. Whether the number of contractual appointments are steadily increasing in the railways in the recent years, and if so, the details thereof during the last 3 years. C. Whether the government has taken note that the general public has expressed concern over privatization of railways, which is causing loss of jobs in the direct recruitment of RRBs. And D. If so, the details thereof and the response of the government in this regard. Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways. मंत्री जी, Answer is laid on the table of the House. क्वेश्चन नंबर 135 डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया. Question number 135 by Dr. Ram Shankar Katheria. Will the Minister of Railways be pleased to state A. Whether the government has formulated a scheme to reserve seats through biometric machines installed outside general coaches. B. If so, the trains wherein such arrangements has been implemented and the trains wherein such arrangements is proposed to be made. C. The trains originating from Etawah wherein such arrangement has been made. And D. In case such arrangement has not been made so far in the trains originating from Etawah, the reasons therefore and the time by which it is likely to be made. Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways. माननीय मंत्री जी, Sir, answer is laid on the table of the House. क्वेश्चन नंबर 136 श्री सुरजीत सिंह ओजला. Question number 136 by Shri Gurjeet Singh Aujla. Will the Minister of Defence be pleased to state A. Whether the indigenously developed COVID-19 drug 2-deoxy-D-glucose, also known as 2DG, has been priced at Rs 950 per sachet. B. If so, the reasons for not pricing the drug by the DRDO lab at affordable price. C. The arrangements of marketing of 2DG drug through Dr. Reddy's laboratories. D. Whether Dr. Reddy's laboratories is being paid commission in this regard. And E.
If so, the details thereof. Shri Ajay Bhatt, Minister of State for Defence. माननीय मंत्री जी, मान्यवर 100 से 4 तक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1371 श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। Question number 137 by Shri Janardhan Singh Sigriwal, Srimati Queen Oja. Will the Minister of Planning be pleased to state: A. The number of districts identified in Bihar and Assam under the Aspirational Districts Program. B. The details of the development works carried out in the said districts, along with the details of the institutes, agencies carrying out the said works. C. The district-wise details of the amount of funds allocated for the said program. D. Whether the government has any proposal to cover more districts under the said program in view of high unemployment rate in various districts of Bihar and Assam. And E. If so, the details thereof, and if not, the reasons therefore. माननीय मंत्री जी, अब सदन के पटल पे रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जो जवाब सकारात्मक आए हैं, मैं उससे पूर्ण रूप में संतुष्ट हूं। लेकिन मैं यह मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, इस परिप्रेक्ष्य में सरकार और क्या अपना आगे की कार्रवाई उसमें चाहती है, और सरकार जिस तरीका से जन सुविधा के लिए, जन भावनाओं के कदर के लिए कर रही है, मैं इस पर सिर्फ कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग आज सरकार की भावनाओं का तो आदर नहीं करते हैं, आम जन की भावना का भी आदर नहीं कर रहे हैं। आज जनता चाह रही है, पूरे देश चाह रहा है कि सरकार या फिर जन भावनाओं का कदर करते हुए देश आगे बढ़े, देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन यह विरोधी लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी बात को न कहते हैं, न कहने में मदद करने का काम करते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आप क्षेत्र और देश के दिशा में सकारात्मक जो कार्य कर रहे हैं उसको और आगे बढ़कर के करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम आगे बढ़ रहा है, इन ऐसे विरोधियों को हरास नहीं आ रहा है, इनके सीने पर वह सूल के जैसा गर रहा है। मैं इनके दर्द को समाप्त जनता तो कर ही रही है, लेकिन सरकार भी अपने कामों के माध्यम से इनको और कठोर से कठोर इनको दर्द हो, यह सरकार का भी प्रयास है। मैं अपनी बातों को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हुए इन विरोधियों को यह सबक मिले कि काम करें, जनता की बातों को सुने और जनता के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, जनता के विकास को आगे बढ़ाएं। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.